Yes, please come. Pranam sir. Please sit. Thank you sir. Vishnu Manjari जी sir. from Patna. जी sir. You have completed your LLM from BHU जी in sir. the 2022. जी. Very good. What was your topic of the dissertation? So my topic was divorce by mutual consent. Divorce by mutual consent. जी sir. ठीक है. Consent theory was propounded in the Hindu Marriage Act. In which year? So in the year 1976. 1976. इसके अलावा और कौन कौन सी थ्योरीज हैं डाइवोर्स के लिए? So there are different theories such as fault theory, then breakdown theory, consent theory, and there is one more theory which is not recognized under the act, but there is irretrievable breakdown of marriage theory. ठीक है. अच्छा, मुझे बताइए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपने पढ़ा होगा. जी सर. वहाँ पे गुड्स का क्या मतलब है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स? So goods is defined in section 2 subsection 7 of the Sale of Goods Act. छोड़ दीजिए. व्हाट इज़ द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर? So the rights of unpaid seller are right of lien, ठीक. right of stoppage in transit. ठीक है, छोड़ दीजिए. काइंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? So there are 5 kinds. छोड़ दीजिए इसे भी. ग्राउंड्स ऑफ रिविजन्स? So the grounds of revision are lack or excess of jurisdiction. ठीक है सर, पूछिए. कुछ नहीं बचता. Yes. Vishnu, जी सर. what is your favorite subject? Sir, I am equally interested in. Very good. Is registration of partnership firm compulsory? No sir, it is not compulsory. Okay. And what is the consequences of non-registration of firm? So as per section 69 of the Partnership Act, the consequences are a partner of the unregistered firm cannot sue the other partners of the firm, and a partner cannot sue third party, and also they cannot claim for set off. Okay, चलिए मैं एक प्रॉब्लम आपके सामने लेके आ रहा हूँ. ऐसा हो कि आपके और मेरे बीच एक पार्टनरशिप की जा रही है. उसमें हम एक टैक्सी बाय करेंगे और वो टैक्सी हम पार्टनरशिप में चलाएंगे, और जो इवनिंग में हमें पर डे इनकम होगी वो हम आपस में डिवाइड करेंगे. क्या ये पार्टनरशिप हम मानी जाए? क्या यहाँ पर कोई बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है? So it is not a partnership because there is no mutual agency sir, which is very important. म्यूचुअल एजेंसी हम दोनों मिलके उसे टैक्सी को चलाएंगे, और यहाँ पर एजेंसी है क्यों नहीं? एजेंसी साथ मतलब मिलके चलाएंगे, कभी आपने चलाया कभी हमने चलाया, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? So the problem is if there is two parties, then they are not principal and agent of. चलिए मान लेते हैं यहाँ पर है. Then sir it will be a partnership. अच्छा, यदि जैसे आप सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू कैरी द बिजनेस. तो यहाँ पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि यदि वो टैक्सी मैंने आपकी परमिशन के बिना सेल कर दिया और जो पैसा था वो मैंने ले लिया और मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, तो क्या यहाँ पर आप मेरे अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट कर सकते हैं? और हमारी अभी पार्टनरशिप जो फर्म थी वो रजिस्टर्ड नहीं है. I'm not sure about this sir, sorry sir. ओके. ये बताइए, इंडिजेंट पर्सन कौन होता है? Sir, Order 33 of CPC deals with indigent person. Indigent person is a person who does not have sufficient means to pay the court fee, or if the court fee is not prescribed, then he does not have property worth 1,000 rupees. And who is next friend? So, next friend is a person who brings suit on behalf of a minor or an insane person. ओके सर. ओके. विष्णु, ये बताइए कि कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट ही इज जस्ट लाइक अ टिटुलर हेड और एक्ट एज लाइक अ रबर स्टैम्प. आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? So, because Article 74 of the Indian Constitution says that President is bound to act on the aid and advice of the Council of Ministers, sir. It is the main reason, sir, that President has power, President is the executive head, but President has to act on the aid and advice of the Council of Ministers. ये बताइए, अगर किसी राज्य में स्टेट इमरजेंसी लगती है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल, तो इसका मैक्सिमम टाइम पीरियड कितना हो सकता है? So the maximum time period is
3 years, sir. 3 years. और अगर एक बार ये पार्लियामेंट से अप्रूव हो जाती है तो इसका ड्यूरेशन कितना बढ़ाया जा सकता है? Sir, the state emergency initially can be imposed for 1 month. Sorry, sir. कोई बात नहीं. मेसने प्रॉफिट एक शब्द है, जी. क्या होता है ये? Sir, Section 2, subsection 12 of CPC defines mean profit. Mean profit is the profit earned by a person by wrongful possession of immovable property or might have earned with ordinary diligence. ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं. ये बताइए, अक्सर सिविल केसेस के अंदर हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडोनेशन ऑफ डिले. जी सर. इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? So when the suit is not instituted within the period of limitation, then we have to file application for the condonation of delay, and the court is satisfied that delay is properly explained and it is in the interest of justice, then court may condone the delay, sir. तो कुल मिला के कह सकते हैं इट इज अप टू दी कोर्ट कि वो आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन को इंटरटेन करे या ना करे, बिकॉज हम तो ऑलरेडी टाइम बार्ड हो चुके हैं. जी सर. ओके, चार्जशीट्स आप क्या समझती हैं? Sir, charge sheet is a police report which in which it is stated that there is material on record to proceed with the case. ठीक है, शुक्रिया. Thank you. विष्णु, जी सर. आपके रोल नंबर में कितने जीरो हैं? Sir, 10. ओनली 10? Yes sir. Sir, 20, sir, 20. हाँ, 20, sir. Sorry sir. 2 तो नहीं है. Yes sir. Yes sir. 20, sir. आपकी हॉबीज़ है डायरी एंट्री. जी. डायरी राइटिंग एंड डायरी एंट्री जी. दोनों में फ़र्क क्या है? Sir, during the sir, diary writing, so the habit of diary writing is from childhood, sir, and diary entry, sir, when I started preparing for this exam, sir, then I started writing each and everything that comes into my mind that I will have to study for tomorrow, and then I write it down in a diary, sir. BHU से आपने मास्टर किया है. जी सर. BHU की फुल फॉर्म क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सर. कब इस्टेब्लिश हुई थी? सर, in the year 1916. और पटना हाई कोर्ट? Sir, in the year 1917, sir, if I am not wrong, but I am not sure, sir. सेम. Same, okay. Sorry, sir. किसने की थी BHU की स्थापना? सर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था. इनके बारे में कुछ बताइए. सर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को महामना की उपाधि दी गई है. इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी इन द ईयर 1916, सर. पटना से हैं? जी सर. पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्रा. कौन सी नदी के किनारे है? सर, गंगा नदी. गंगा नदी के. एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी सर. आप मुझे बताइए कि आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या होंगी? Sir, my first and foremost duty is to perform the judicial activities in the most efficient manner, and that's it, sir. ओनली वन ड्यूटी? चलिए ठीक है. प्लीज़, लास्ट क्वेश्चन है मेरा. आप जज क्यों बनना चाहते हैं? सर, हम जज इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि सर मेरे पिताजी भी जुडिशल सर्विसेज से ही रिटायर हुए हैं, और बचपन से वो मेरे एक बहुत बड़े आदर्श रहे हैं, और उनसे हमको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली है. इसके अलावा सर, ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, एक काफ़ी गुड और रेप्यूटेड सर्विस है, सर. तो हम चाहेंगे कि हम सर्विस में आएँ. वेरी गुड. प्लीज़ सर. विष्णु मंजरी, जी सर. आपका नाम बहुत अच्छा है. इन दोनों नामों के अलग अलग मतलब बताइए मुझे. Sir, Vishnu, the word Vishnu here symbolizes Lord Vishnu, and Manjari term means, sir, manjar, which means fruit. So basically, the meaning of my name is blessings or fruit by Lord Vishnu. ठीक है, तो फिर ये बताइए कि सेक्शन 9 और सेक्शन 17 में, सेक्शन 9 में डिस्ट्रिक्ट जज और सेक्शन 17 में आर्बिट्रेटर, ये दोनों ही कुछ इंटरिम मीजर्स के ऑर्डर्स पास कर सकते हैं. कौन कौन से? So as of now, I can remember the orders such as detention and the preservation of property, ठीक है. interim sale. ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर. जी सर. ठीक, आप जा सकते हैं. Thank you, sir.
बॉडी प्रेजेंटेशन, ड्रेस कोड, ये सही है। एक दो बार हैंड मूवमेंट भी हुआ है, जी सर, जी जी। तो बिल्कुल थोड़ा बहुत तो चल जाता है, पर बॉडी के बाहर चला गया तो दिक्कत है। बाकी आपके सारे नॉलेज एक्सेलेंट है, BHU पे थोड़ा और काम कर लीजिएगा। जी सर। एंड रीड ऑल वेल द सब्जेक्ट। वैसे तो आप कंफर्टेबल लगे सभी सब्जेक्ट में, फिर भी अगर किसी में बेस्ट हैं क्यों सर, तो आप एक मेंशन कर दो। हो सकता है वो इंटरव्यू आपका उसी सब्जेक्ट से रहे। मान लीजिए कोई जैसे सर ने लास्ट में एक एक्ट पूछा आप, तो फिर यहाँ से आप थोड़ी फंस जाएंगी, मतलब ये, क्योंकि डेफिनेटली आपकी बहुत अच्छी रैंक आने वाली है। तो आप रीड वेल ऑल द सब्जेक्ट की जगह कोई एक सब्जेक्ट देख लीजिएगा। जी सर। होता है कि पैनलिस्ट एक ही सब्जेक्ट में आपसे क्वेश्चन कर लें और इंटरव्यू और भी अच्छा जाए, ठीक है, फंसने के चांस कम हो जाएंगे। और हमें ऐसा लगता है कि आपकी रैंक बहुत बहुत अच्छी आएगी। सर राइटिंग कैसी है आपकी? सर अच्छी है सर। अच्छी है। और एग्ज़ाम मेंस कैसे हुए थे? सर अच्छा हुआ है सर। कोई छूटा तो नहीं था पेपर? बस जीके थोड़ा सा डगमगा गया था। ऐसा हुआ, बट जीएस सर अच्छा गया और लॉ सर चारों अच्छा गया है। बस तो ठीक है। ठीक। जीके पहला पेपर ख़राब हो गया था? जी सर। अच्छा अच्छा, ख़राब नहीं, बट जैसे बुक्स एंड ऑथर्स वगैरह आया तो सर वो नहीं। नए आए थे इस बार। जी सर। उसमें- चलिए कोई नहीं, इतना घबराने की जरूरत नहीं, कमांड है आपको, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। Thank you, sir. ठीक है। कुछ पूछना है? सर वो ओवरलैपिंग का सिचुएशन सर वो कैसे, हाँ, वो तो करना पड़ेगा आप पे। आप मतलब थोड़ा सीरियस सिचुएशन है, बट सर हंसती हैं ज़्यादा? समझते नहीं है, लेकिन जब डर लगता है तो या तो हम बहुत चुप हो जाएंगे या फिर खुद को काम करने के लिए स्माइल करते हैं। थोड़ा 15 मिनट की तो बात ही है सारी। सर एक्चुअली ये मेरा पहला मॉक है, तो थोड़ा ज़्यादा फियर और नर्वसनेस था। चलिए ऑल द बेस्ट। जी पूछिए, कुछ पूछना है? 75 तो हम ही दे देते। डेफिनेटली उसमें आपको वो वाली ग्राउंड आप छोड़ दीजिए, आप उस कैटेगरी के स्टूडेंट नहीं हैं। हाँ। आपको तो उसमें रख ही नहीं रहे हम, कहीं से कहते हैं। ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। नहीं नहीं नहीं, दैट्स वाज वेरी गुड। एवरीथिंग इज़ गुड। ठीक है, चलिए मेहनत कर लीजिएगा, थोड़ा और जितना हो सके रिवीजन करिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ओके ओके, प्रणाम।